Hello students, welcome all of you to this online class. In my last class, I have started the chapter Atom where we discussed about the introduction of atom. We learn about some atomic models like Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model, where we learned about Rutherford alpha particle scattering experiment, its observations, conclusions and limitations, etc. So today we are going to discuss about the distance of closest approach. So let's know what is the distance of closest approach. It is the distance between the center of nucleus and the point from which the alpha particle approaching directly towards the nucleus returns. That means, so student जेतेबेले अल्फा पार्टिकल अप्रोच करुचे न्यूक्लियस आड़ को गोटे सर्टेन पॉइंट रू ये पुणी बैक करुचे जो डायरेक्शन रू आसला से डायरेक्शन आड़ को रिटर्न हो जाउची तो सही पॉइंट रे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट बुझेला सो let the alpha particle is returning back along the same path from a distance that is r naught, which is the distance of closest approach. So at r naught distance a point रे the speed of alpha particle becomes gradually decreases and becomes 0. तो ଯେତେବେଳେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି ପିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାର ଭେଲୋସିଟିଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରି କରି ଚାଲେ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମନେକର ତାର ଭେଲୋସିଟି 0 ହେଇଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ହୁଏ as alpha particle is a positively charged particle and nucleus is also positive charge तो due to the electrostatic force of repulsion तो alpha particle ऊपर opposite direction रू गोटे force apply हुए that is a repulsive force जो कि जी जिते फॉरवर्ड जाऊँगी न्यूक्लियस आड़ को तो यार वेलोसिटी और स्पीडटा कमी कमी जाऊँगी सो जितेबाला सी बहुत पाखक न्यूक्लियस पड़े आस तो सेतेबाला द फोर्स बिकम्स मोर द रिपल्सिव फोर्स बिकम्स मैक्सिमम एंड हियर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल becomes 0 then due to the electrostatic force of repulsion न्यूक्लियस कौन करे अल्फा पार्टिकल को रिपेल करे तो ये जो आड़ आसला पुणी से पट को रिटर्न कर बुझेला तो पिले देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी को पॉइंट रे when the velocity is equal to 0 the whole kinetic energy converted into the electrostatic potential energy here. Okay, then the value of electrostatic potential energy, that is electrostatic potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r तो दीटा चार्ज पार्टिकल भितर थिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू हैला 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r तो एठी गोटे चार्ज पार्टिकल के हैला 1 by 4 pi epsilon naught let q1 is the charge of nucleus and q2 is the charge of what alpha particle तो electrostatic potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon naught ZE charge of nucleus into 2E charge of alpha particle whole divided by the distance between nucleus and alpha particle तो ये distance केते अछि r naught अछि तो एबे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आमे पाइलो 1 by 4 pi epsilon naught ZE into 2E by r naught where ZE is the charge of nucleus and 2E is the charge of alpha particle. Okay, so by conservation of energy by law of conservation of energy तो law conservation law कौन कहूची तो काइनेटिक एनर्जी at this point will be equal to the potential energy कहीं ना टोटल काइनेटिक एनर्जी एठी जेते वेलोसिटी 0 होची ता माने एनर्जी गला कोडे सब जक एनर्जी कन्वर्ट हो गला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म को सो बिफोर काइनेटिक एनर्जी केते थिला अल्फा पार्टिकल रो व्हाइल इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv² तो एठी कोन हैला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू
potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught Ze into 2E by R naught. एठी आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू यूज करछे. सो पिले एटू हमको दरकार R naught रो वैल्यू केते. सो R naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 into Ze into 2E by R naught into mv square, or we can write R naught equal to 4 Ze square by 4 pi epsilon naught mv square. Okay, so this is the value of distance of closest approach. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रे अल्फा पार्टिकल को आमे कहा ऊपर को टार्गेट करथिले गोल्ड फॉइल ऊपर को. तो गोल्ड फॉइल पाई की गोल्ड फॉइल रो न्यूक्लियस पाई और अल्फा पार्टिकल पाई की से एक्सपेरिमेंट रो आमे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच केते पाइजे. जदि v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इक्वल टू 2 into 10 to the power 7 meter per second and gold रो एटॉमिक नंबर केते जानिचो 79. तो आमे एटॉमिक नंबर z इज द एटॉमिक नंबर. सो फॉर गोल्ड न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर इक्वल टू 79. तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस रो वैल्यू z into e सब जगह रो वैल्यू ए फार्मूला रे पुट कले आमे r naught रो वैल्यू पाइबा 2.69 into 10 to the power minus 40 meter. Okay, next let's learn about the Bohr's atomic model. So after failure of Rutherford's atomic model, then Niels Bohr in 1913 proposed a new atomic model. According to his name, his atomic model is known as Bohr's atomic model, where he explained about the spectral lines of hydrogen atom and stability of atom. Okay, hydrogen atom रो spectral line जोटा कि हमें आगु डिस्कस करबा and atom रो stability विषय रे से आइडिया देथिले. तो नेक्स्ट जानिबा तांकर कोन कोन पोस्टुलेट्स थिला और से कोन डाटा सब प्रोवाइड करथिले तांका एटॉमिक मॉडल रे. से फर्स्ट पोस्टुलेट रे कहिथिले एवरी एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस. दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एटम रो सेंटर रे कोन थाय प्ले न्यूक्लियस थाय जोठी की वेयर होल पॉजिटिव चार्जेस and almost entire mass of atom are concentrated. तो न्यूक्लियस रे एटम रो सब जगह पॉजिटिव चार्ज थाए आउ मैक्सिमम मास एंटायर मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस भीतर कंसंट्रेट हेकी रहते. बुझि पाले बोले. तो जानिचो न्यूक्लियस क्यारी कोन करे सब जगह प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन को क्यारी करे. तो देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रो आउटसाइड रे न्यूक्लियस चारिपटे सर्कुलर ऑर्बिट रे रिवॉल्व करंती एंड न्यूक्लियस भीतर थाए सब जगह प्रोटॉन. तेणु होल पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑलमोस्ट जेहेतु प्रोटॉन रो मास हला इलेक्ट्रॉन टू बहुत अधिक आ प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन दी जण जाक जेहेतु रहिले का भीतर न्यूक्लियस भीतर. तेणु मैक्सिमम मास ऑफ द और एंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इनसाइड दिस न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट से कहते इलेक्ट्रॉन्स दैट आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन माने न्यूक्लियस रो चारिपटे सर्कुलर ऑर्बिट रे रिवॉल्व करते घूरी थांती. द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस. तो when the electron is revolving in circular orbit, then circular motion ta maintain haba pai kon darkar eti centripetal force which is provided by the electrostatic force of attraction by the nucleus. तो nucleus रो charge हला पले positive, electron ता चारिपटे revolve करे जोटा रो की charge होची नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दी जन को भीतर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है दैट इज द प्लस चार्ज रिपेल करे प्लस माइनस चार्ज अपोजिट चार्ज रहिले से माने कोन करंती अट्रैक्ट करंती. तो ई केस रे जो अट्रैक्शन होता है ताको कहा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है सेटा कोन करे ना दैट सप्लाइड द रिक्वायर्ड और नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्यूशन. ओके, तो ई केस रे the centripetal force is equal to mv square by r. M is the mass of electron, v is the velocity with which the electron is revolving, and r is the radius. So mv square by r is equal to
कहा सहित इक्वाल हम सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इक्वाल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटा बैलेंस हो केस रे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रो वैल्यू केते 1/4πε0 ZE into E by R square where ZE is the charge of nucleus, E is the charge of electron and R square is the or R is the distance between the nucleus and the electron. So what is electrostatic force? Let's have what idea देउची एठी तुमको सुनो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेहेतु तुम पढ़ाएनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे जेतेबेले दीटा चार्ज पॉइंट चार्ज पाखापाखि रुहंती मन कर एटा न्यूक्लियस है एटा इलेक्ट्रॉन है दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r तो जदि चार्ज पार्टिकल पाखापाखि गोटे r डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रे रुहंती देन सेमानको भितर केते फोर्स एक्सपीरियंस हुए ना दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस so let this one has q1 charge and this one has q2 charge so the force between them is directly proportional to q1 into q2 and inversely proportional to 1 by r square so the force becomes a proportional to q1 q2 by r square and F equal to some constant 1/4πε0 q1 q2 by r square. Okay, so force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so electrostatic force obeys inverse square law. तो बोले एठी हमें q1 is the that it is the charge of nucleus and q2 is the charge of electron. So q1 रो वैल्यू हमें पुट कले 1/4πε0 ZE charge of nucleus into E charge of electron by distance of separation है r square. Okay, so here centripetal force will be equal to the electrostatic force of attraction between the nucleus and electron. So Z is the charge of nucleus, m is the mass of electron, v is the velocity with which the electron is revolving around the nucleus, r is the radius in which the electron is revolving. Okay, radius of that orbit. Then second postulate कौन थिला electrons are permitted to revolve in a certain discrete or non-radiating orbit that are called stationary orbit. इलेक्ट्रॉन मानू को परमिशन थिला कि से फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट प्रोवाइड कराइथवा से केवल सही ऑर्बिट रे ही रोटेट करिवो दैट आर द परमिटेड ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन माने डिफरेंट परमिटेड ऑर्बिट रे रोटेट करथिले जेतेबेले से माने परमिटेड ऑर्बिट रे रोटेट करंती सेतेबेले इलेक्ट्रॉन माने कोनोसी रेडिएशन एमिट करंती नै से मानकर एनर्जी एमिट हुए नै. तो जो परमिटेड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रोटेट करंती सेही ऑर्बिट मान को कहा जाय स्टेशनरी व्हिच मींस फिक्स्ड stationary or fixed orbits. Okay, then next postulate was for any permitted orbit the total angular momentum of revolving electron is an integral multiple of h by 2 pi. When the electron is having a circular motion then ता पाखरे कौन थे ता पाखरे थे एंगुलर मोमेंटम केते था इलेक्ट्रॉन रो ना एंगुलर मोमेंटम तुम जान छ सर्कुलर मोशन पढ़ी छ L is equal to mvr. m is the mass of the electron, v is the velocity with which it is revolving, r is the radius of the orbit. So L is equal to mvr is equal to some integral number n into h by 2 pi nh by. So L is equal to nh by 2 pi where h is the Planck's constant, n is the number of orbits that are 1 2 3 6. Okay, then next postulate was when electrons jump from one stationary orbit to another orbit then only radiation or absorption of energy can take place. तो जेतेबेले इलेक्ट्रॉन टा बेले फिक्स्ड ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची इलेक्ट्रॉन जेतेबेले फिक्स्ड ऑर्बिट रे अछि सेतेबेले कोनोसी रेडिएशन हुए नहीं. तो रेडिएशन और एनर्जी लॉस और गेन हुए केतेबेले तो पिले जो एनर्जीटा लॉस हुए और गेन हुए सेटा रेडिएशन और लाइट एनर्जी फॉर्म रे हेते. तो सेही लाइट एनर्जीटा गेन होची और एनर्जी अब्सॉर्ब होची और लॉस केतेबेले होची ना जेतेबेले ट्रांजिशन होची ऑर्बिट रो गोटे ऑर्बिट रो आ गोटे ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जाउची बुझिपालो. तो
ଯେତେବେଳେ when electrons emit radiations if they jump from outer orbit to inner orbit, इलेक्ट्रॉन जदि आउटर ऑर्बिट रु इनर ऑर्बिट को जंप करे और हायर टू लोअर ऑर्बिट को आसे देन ये कौन करुच्ची ना एनर्जी राडिएट करुच्ची बुझिपाल जदि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट को जाउची देन एठी कौन हुए एनर्जी एब्जॉर्ब करे बुझिपाल बोले तो से एनर्जी रो वैल्यू केते ना h nu that is equal to E final minus E initial or E initial minus E final minus E initial is equal to h nu. So E final is the final orbit in which the electron is present now and final orbit जोठ की इलेक्ट्रॉन गला minus initial orbit जोठू गला that is equal to h nu energy radiated. So nu is the frequency of radiation. बुझिपाल बोले तो these are the postulates of Bohr's atomic model. तो बोले तुम मैंने इतनी पर्यंत भलसे पढ़ब बार बार वीडियो को देखिबो नेक्स्ट क्लास आमे बोर्स पोस्टुलेट ऊपर जहाँ आज डिस्कस कले नेक्स्ट बोर्स पोस्टुलेट परठू बाकी पोर्शन बोर्स एटॉमिक मॉडल रो पढ़बे सो थैंक यू।